Hello, good afternoon, everyone. One important announcement for you. Only three students have submitted your project. Uh, Remaining students have not submitted their project title, so you are requested to submit it by Saturday. Okay. Otherwise, I will not consider you in the project. Okay. So please try to submit your project before this Saturday. Now, as per our curriculum point of view, our third unit, now we are going to learn about the sensors and actuators. I have given you a brief idea as well as idea about the sensors and actuators. Okay, we have learned about the different type of sensors. Now, I am giving you the idea about the statics and dynamic characteristics. Okay, that are necessary in the instruments. Okay, as well as sensors. Okay, so we will see how these statics and dynamic characteristics are there. Okay, so see, I think you are able to see the slide, statics and dynamic characteristics of measurement systems. Okay, so here the performance characteristics of an instruments are mainly divided into two categories like static characteristics and dynamic characteristics. Okay, now we see what is the static characteristics. Okay, so here see the set of criteria defined for the instruments which are used to measure the quantity which are slowly varying with time or mostly constant, that is they do not vary with time. Okay, it's called static characteristics. Okay, so remember here, okay, if you find the instrument or any sensor, okay, it has a very slow variations with respect to time. Okay, means a sensors or any instrument is measuring the signal, okay, at very slow rate. Okay, so that's why if it is slowly varying with respect to time, or mostly you can say, you if you observe, it is a constant. Okay, it is not varying. Okay, it is goes in saturation level. Okay, constant level is getting. Okay, so that's why you can say these are the static characteristics. Okay, means in spite of variation, in spite of applying any kind of input signal, or if you have modified the input signal also, then also its output is not varying. Okay, यानी अगर आपने वहां पर फॉर एग्जांपल सीआरओ है तो सीआरओ में अगर आप साइन वेव वहां पर अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो, लेकिन अगर आपने वहां पर वो साइन वेव को यहाँ फंक्शन जनरेटर से अगर आपने वहां पर वेरिएशन करना चाहा, तो वेरिएशन भी किया अगर आपने, तो भी वहां पर ऑब्जर्वेशंस में आपको, सीआरओ के ऑब्जर्वेशंस में आपको वेरिएशंस अगर नहीं दिखा रहा होगा, so that's why we will say it is a static characteristics. Okay, so here these points are taken in considerations under the static characteristics like accuracy, then precision, then sensitivity, then linearity, then reproducibility, repeatability. Okay, these are the major points that are taken in considerations while static characteristics. Okay, now I am going to elaborate. Okay, okay. Also, there are resolutions, similarly threshold, like drift, stability, tolerance, as well as the range of span. Okay, these are the various points that are taken in considerations. Okay, so these points are comes under the static characteristics. Okay, so because of these characteristics you can able to define the uh, static characteristics. Okay, or other instrument. Okay, the or type of the instruments. Okay, so here are type of sensors or actuators also. Okay, so here we will see one by one how you can define the accuracy. Okay, see, if you have to say accuracy, then I hope you already learn in the measurement, or those who are from second year,
Okay, they are not aware with that. Okay, but I am going to tell you here, okay, how you can measure the accuracy. Okay, so that's why here accuracy you can define as it is the degree of closeness with which the reading approaches the true value of the quantity to be measured. Okay, the accuracy can be expressed by the following way, like point accuracy or accuracy as percentage of scale span or accuracy as percentage of true value. Okay, so these are the points, that points are considered under the accuracy. Okay, so here whenever you are going to define the accuracy, then accuracy is a degree ऑफ क्लोजनेस. ओके, यानी फॉर एग्जांपल अगर आप कोई रीडिंग अगर मेजर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल अगर आप थर्मामीटर होगा, थर्मामीटर के ऊपर अगर रीडिंग अगर ऑब्जर्व कर रहे होंगे, तो थर्मामीटर अगर मर्क्यूरी बेस अगर होगा, ओके, डिजिटल इंडिकेटर में तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन अगर आप वहाँ पर अगर मर्क्यूरी बेस अगर थर्मामीटर होगा तो उसमें अगर आप वहाँ रीडिंग अगर ऑब्जर्व कर रहे होगे, सो दैट्स वाई वहाँ पर आपको ये डिग्री ऑफ क्लोजनेस विथ विच द रीडिंग अप्रोचेस टू द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड, ये आपको वहाँ पर दिखाई दे सकता है. ओके, यानी कैसा है कि जब आप यहाँ पर ऑब्जर्वेशनल रीडिंग ले रहे हो तो वहाँ पर एक्यूरेसी की बात आती है, तो वहाँ हम जनरली अक्सर यहाँ एक्यूरेसी पॉइंट आउट करते हैं. अगर आप डिजिटल इंडिकेटर्स के द्वारा देख रहे हो तो वहाँ पर फ्रैक्शनल वैल्यू आती है, यानी कैसा है कि आपको वहाँ पर 93 और 95.6, ओके, 95.666 और 95.6789, ओके, इस तरह की अगर रीडिंग अगर आती है, तो जितनी फ्रैक्शनल रीडिंग रहेगी उतना एक्यूरेसी वहाँ पर, तो वहाँ क्लोजनेस जितना रहेगा एग्जैक्ट वैल्यू की तरफ, वहाँ पर आप उसे एक्यूरेट रीडिंग कह सकते हो. सो दैट्स व्हाई कीप इट इन माइंड द डेफिनेशन, it is the degree of closeness with which the reading approaches to the true value of the quantity to be measured. Okay, so generally here I given you these 3 points, so with the help of these 3 points you can also define the accuracy. First point is point accuracy. Okay, so here we can define this point accuracy like that. It is such accuracy is specified at only one particular point of scale. Okay, such type of accuracy is specified at only one particular point of scale, or it does not give any information about the accuracy at any other point of scale. Okay, so that's why specified point accuracy will be measured with the help of point accuracy. So that's why here at only one particular point of scale this accuracy is specified. Okay, then accuracy as percentage of scale span. Okay, whenever you are going to specify the accuracy, that may be considered in terms of percentage of scale span. Okay, तो आप इतने परसेंटेज ऑफ एक्यूरेसी वहाँ पर आप कह सकते हो. सो दैट्स व्हाई when an instrument as uniform scale, okay, when an instrument as uniform scale, its accuracy may be expressed in terms of scale range. Okay, तो तो यहाँ पर आपको पर्टिकुलरली जो स्केल है उस स्केल के ऊपर आपको यहाँ पर ऑब्जर्व करना रहेगा एक्यूरेसी. सो दैट्स वाई यूनिफॉर्मिटी वहाँ पर अगर होगी तो बेटर रहेगा. सो दैट्स वाई इट्स एक्यूरेसी मे बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ स्केल रेंज. तो स्केल की क्या रेंज है जनरली वहाँ पर, अगर वो लार्ज स्केल अगर रहेगा या शॉर्ट स्केल रहेगा तो उसके ऊपर वहाँ पर एक्यूरेसी डिपेंडेंट रहती है. ओके, तो कोई कोई यहाँ पर जनरली कैसा है कि आप अगर वहाँ लार्ज अगर स्केल अगर ले रहे होगे तो वहाँ एक्यूरेसी आपको ऑब्जर्वेशनल एक्यूरेसी आ सकती है. ओके, अगर आप वहाँ पर स्मॉलर स्केल लेते हो तो वहाँ पर एक्यूरेट एक्यूरेसी आपको वहाँ पर आ सकती है. ओके, तो ये डिपेंडेंट रहेगा आप कौन से टाइप का यहाँ पर स्केल का स्पैन ऑब्जर्व कर रहे हो. ओके, तो स्केल जो स्पैन है वो स्पैन अगर ज़्यादा होगा तो वहाँ एक्यूरेसी कम दिखाई देगी, और अगर ऐसी सिचुएशन में तो यहाँ ये डिपेंडेंट रहेगा परसेंटेज ऑफ स्केल स्पैन. ओके, देन नेक्स्ट आएगा यहाँ पर एक्यूरेसी एज परसेंटेज ऑफ ट्रू वैल्यू. ओके, तो एक्यूरेसी एज परसेंटेज ऑफ ट्रू वैल्यू ये आप इस तरह यहाँ कंसिडर कर सकते हो. द बेस्ट वे टू कन्वीनियंस
the idea of accuracy is to specify in it the in terms of the true value of the quantity being measured. Okay, so here, uh, as closeness to the true value here, the percentage of true value will be dependent. Okay, so that's why here uh, it will be considered in terms of that. Okay, now up till now this particular point, okay, accuracy will be there. Now second point is here a precision. Okay, so that's why here precision is shown here. Okay, so that's why this second point is precision. Okay, it is the measure of reproducibility. Okay, so second point is precision. How you can measure the precision? Precision means it is the measure of reproducibility. Okay, how many times you can again measure that same thing? Okay, आप उसको पर्टिकुलर जो रीडिंग है वो कितनी बार यहाँ पर ले सकते हो, तो रिप्रोड्यूसिबिलिटी ओके वहाँ पर कितनी बार हो सकता है, दैट इज given a fixed value of quantity. Precision is measure of degree of agreement within the group of measurement. Okay, so generally here the precision is composed of two characteristics. First one is conformity and second one is number of significant figures. Okay, so conformity means kaisa कि consider a register having a true value is 2385692 which is being measured by an ohm meter. Okay, अगर आप एक रेजिस्टेंस मीटर है या ओहम मीटर है, अगर आप उसके द्वारा अगर मेजर कर रहे होंगे तो वो आपको यहाँ पर इतनी अगर यहाँ पर दिखा रहा है, बट द रीडर कैन रीड कंसिस्टेंटली अ वैल्यू एज 2.4 मेगा. ओके, ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉपर स्केल. ओके, यानी अगर प्रॉपर स्केल नहीं रहा तो वहां पर आपको ये पर्टिकुलरली वैल्यू राउंड अप वैल्यू में मेजर मेजर होते हुए दिखाई देगी. तो बहुत सारी बार होता है कि वहाँ आपको अगर मल्टीमीटर होगा या ओहम मीटर होगा तो उसके ऊपर आपको इस तरह का फ्रैक्शनल वैल्यू शायद ही आपको नहीं दिखाई देगा. ओके, वो क्या करता है डायरेक्टली आपको वहाँ पर राउंड अप वैल्यू यहाँ पर डायरेक्टली दे देता है 2.4 मेगा ओम. ओके, so that's why the error created due to the limitation of the scale reading is a precision error. Okay, ये इस तरह का एरर आपको वहाँ पर ये लिमिटेशंस यहाँ पर प्रोड्यूस कर देता है. ओके, सो दैट्स वाई इस तरह का प्रिसाइजली आप रीडिंग वहाँ पर ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं. ओके, then number of significant figures. Okay, so the precision of the measurement is often from the number of significant figure. Okay, the precision of the measurement, okay, is often from the number of significant figure in which the reading is expressed. Okay, the significant figure convey the actual information about the magnitude and the measurement precision of the quantity. ओके, द प्रिसीजन कैन बी मैथमेटिकली एक्सप्रेस एज, ओके उसके यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया है P इज इक्वल टू 1 माइनस इन मॉड ऑफ एक्स एन माइनस एक्स एन बार अपॉन एक्स एन बार. ओके, तो यहाँ P बोला तो P आपको यहाँ पर डिफाइन किया है एज अ प्रिसीजन. एक्स एन यहाँ पर वैल्यू ऑफ द nth मेजरमेंट और एक्स एन यहाँ पर दिया है एवरेज वैल्यू ऑफ द एवरेज वैल्यू द सेट ऑफ द मेजरमेंट वैल्यू. ओके, तो इस तरह आपको यहाँ ये फॉर्मूला यहाँ पर दिया है. ओके, तो ये शो आउट कर रहा है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर. ओके, तो वहाँ पर हो सकता है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आपको यहाँ पर हर बार चेंज हो जाए, यानी यहाँ पर कहा है कि भाई द प्रिसीजन ऑफ द मेजरमेंट इज ऑब्टेन फ्रॉम द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर in which the reading is expressed. Okay, so that's why here you will find such type of precision error. Okay, then third is sensitivity. The sensitivity denotes the smallest change in the measured value to which the instrument respond. Okay, यानी अगर आप वहाँ पर अगर कोई माइनर से माइनर अगर चेंज वहाँ अगर अप्लाई कर देते हो, फॉर एग्जांपल इफ यू आर गोइंग टू मेजर द टेम्परेचर और टेम्परेचर में अगर फाइनल अगर वहाँ पर मेजर करते समय अगर फ्रैक्शनल वहाँ पर माइन्यूट टेम्परेचर अगर राइज हो गया ड्रॉप हो गया, तो ऐसे सिचुएशन में वहाँ पर क्या इंस्ट्रूमेंट या सेंसर्स आपको रिस्पॉन्ड इमीडिएटली देगा?
या वो रिस्पॉन्ड नहीं देता है, तो ऐसे सिचुएशन में आप वहाँ पर उसका सेंसिटिविटी कैलकुलेट कर लेते हो। ओके, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन द आउटपुट ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट टू द चेंज इन द वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी टू बी मेजर। ओके, तो यहाँ आप उसको इस तरह का रेशियो के द्वारा उसको डिफाइन कर सकोगे। इट इज द change in output to the change in the quantity to be measured or change in input। ओके, change in output to the change in input। ओके, इसके रेशियो के ऊपर यहाँ पर आप उसका सेंसिटिविटी एक्सप्रेस कर सकते हो। तो यहाँ उसे मैथमेटिकली यहाँ इस तरह उसे शो ऑफ किया है। सेंसिटिविटी इज इक्वल टू द इन infinitesimal change in change, okay, or infinitesimal change in input। ओके, सो आपको यहाँ पर उसे डिफाइन किया है इज इक्वल टू चेंज इन डेल्टा is considered as a change in Q0 min upon change in QI। ओके, Q0 मीन्स आउटपुट, ओके, और QI यानी इनपुट। इस तरह उसको यहाँ पर शॉर्ट किया है। अगर आप यहाँ पर उसे ग्राफिकली अगर आप शो करना चाह रहे हो, तो यहाँ पर देखिए ग्राफ के द्वारा भी आपको यहाँ पर शो किया है। ओके, फर्स्ट इज शोइंग यू लीनियर इंक्रीजिंग। ओके, वहाँ पर आपको इस तरह यहाँ आपको डेल क्यू जीरो और डेल क्यू आई शॉर्ट किया है। ओके, डेल क्यू आई एज अ इनपुट है, क्यू जीरो इज आउटपुट है, और यहाँ पर ये चेंज बताया है तो डेल के द्वारा चेंज इन यानी एक आपको यहाँ पर इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू यहाँ पर ऑब्जर्व की है और उसका सब्ट्रैक्शन के द्वारा यहाँ पर चेंज बताया है। ओके, तो उसी तरह यहाँ पर अगर आप यहाँ पर एक्सपोनेंट अगर सिग्नल होगा तो आप एक्सपोनेंट सिग्नल में भी उसको यहाँ पर इस तरह ऑब्जर्व कर सकते हो। ओके, सो सी इस तरह आपको यहाँ पर ये सेंसिटिविटी आप मेजर कर सकते हो। ओके, इफ द कैलिब्रेशन curve is linear as shown, the sensitivity of the instrument is the slope of the calibration curve। If the calibration curve is not linear as shown, then the sensitivity varies with the input। Okay, inverse sensitivity or deflection factor is defined as the reciprocal of sensitivity। Okay, inverse sensitivity or deflection factor is equal to 1 upon sensitivity। Okay, तो आप यहाँ पर अगर इनवर्स सेंसिटिविटी या डिफ्लेक्शन फैक्टर अगर आप ड्रॉप आउट करना चाह रहे हो, तो वो भी आप यहाँ पर इस तरह उसे डिफाइन कर सकते हो। ओके, उसे यहाँ इस तरह का हम उसे फार्मूले के द्वारा उसे डिफाइन कर सकते हो, डेल क्यू आई अपॉन डेल क्यू जीरो। ओके, तो ये रिवर्ट है, याद रखिए, डेल क्यू आई अपॉन डेल क्यू जीरो ये रिवर्ट रहेगा। सो दैट्स वाई ये डिफ्लेक्शन, ओके, डिफ्लेक्शन फैक्टर रहेगा यानी 1 अपॉन सेंसिटिविटी है। तो यहाँ जो रेशो है, ये रेशो यहाँ पर सेंसिटिविटी के लिए आपको बताया है, डेल क्यू जीरो अपॉन डेल क्यू आई। ओके, ये 1 अपॉन डेल क्यू जीरो अपॉन डेल क्यू आई आएगा, तो ये ऊपर आ जाएगा इनपुट और नीचे आ जाएगा आउटपुट। ओके, सो इस तरह आप उसे सेंसिटिविटी या आप रिवर्स सेंसिटिविटी शो कर सकोगे। देन नेक्स्ट आता है लिनियरिटी। Okay, the linearity is defined as the ability to reproduce the input characteristics symmetrically and linearly। Okay, linearity means the linearity is defined as the ability to reproduce the input characteristics symmetrically and linearly। The curve shows the actual calibration curve and idealized straight line। ओके, तो यहाँ पर आपको एक ग्राफ के द्वारा यहाँ पर शॉर्ट किया है। देखिए यहाँ पर ग्राफ के द्वारा आपको यहाँ शॉर्ट किया है इनपुट वर्सेस आउटपुट। ओके, और यहाँ पर एक लीनियर ग्राफ यहाँ पर शो किया है, वो एक्चुअली वो रहेगी आइडियल स्ट्रेट लाइन, यानी हमारा एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स कुछ इस तरह चाहिए था, लेकिन एक्चुअल जो रिस्पॉन्स है वो कुछ यहाँ थोड़ा हट के आ रहा है। तो ये जो है यहाँ आपको शॉर्ट कर रहा है कि भाई इट इज नॉट लीनियर विथ रिस्पेक्ट टू द आइडियल स्ट्रेट लाइन, यानी डिफाइनेशन इस तरह किया है, द लिनियरिटी इज डिफाइंड एज द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक सिमिलरली, सिमेट्रिकली एंड लिनियरिटी।
ओके, यानी हम जितना यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई मुझे लीनियर आउटपुट मिल जाएगा, लेकिन वो लीनियर आउटपुट नहीं मिला। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में वहां पर जो भी डिस्टॉर्टेड या जो भी थोड़ा बहुत यहाँ पर आउटपुट आपको मिला है, तो वो यहाँ इस तरह ऑब्जर्व हो रहा है। ओके, सो दैट्स वाई इस तरह आप यहाँ पर लिनियरिटी आप डिफाइन कर सकोगे। ओके, नाउ उसे यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ फार्मूले में बताया है, परसेंटेज ऑफ नॉन लिनियरिटीज। ओके, मैक्स मैक्सिमम डेविएशन ऑफ द आउटपुट फ्रॉम आइडियलाइज स्ट्रेट लाइन अपॉन फुल स्केल रीडिंग। ओके, तो यहाँ मैक्सिमाइज, ओके, और मैक्सिमम डेविएशन, जितना आपको डेविएशन हो रहा है, जितना आपको यहाँ पर वेरिएशन हो रहा है ऑफ आउटपुट फ्रॉम आइडियल स्ट्रेट लाइन। ओके, तो यानी फॉर एग्जांपल आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं 10 वोल्टेज आउटपुट, अगर लेकिन 10 वोल्टेज की जगह आपको 9 वोल्टेज मिल रहा है या 12 वोल्टेज मिल रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको वहाँ वो लीनियर यानी आइडियल जो स्ट्रेट लाइन है उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पर उसका डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, और डेविएशन के द्वारा हम यह ऑब्जर्व करेंगे कि भाई यहाँ पर ये मैक्सिमम डेविएशन मुझे मिल रहा है। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू आइडियल स्ट्रेट लाइन अपॉन फुल स्केल रीडिंग। ओके, तो इस तरह आप उसे लिनियरिटी यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकोगे। तो लिनियरिटी के लिए कुछ आप इस तरह का यहाँ ग्राफ का शो कर सकोगे। ओके, then next point is reproducibility. Reproducibility means it is the degree, reproducibility means बार बार सेम सेम आउटपुट आपको यहाँ पर मिलना चाहिए। रिप्रोड्यूसिबल सिंपल मीनिंग में यहाँ पर बता रहा हूँ। रिप्रोड्यूसिबिलिटी यानी इट इज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस विथ विच a given value may be repeatedly measured। ओके, यानी आप वही वैल्यू अगर आपको मिल रहा है भाई 95 डिग्री सेंटीग्रेड अगर मिल रहा है आपका बॉडी का टेम्परेचर, तो 95 डिग्री सेंटीग्रेड हर बार मिल रहा है क्या? नहीं। या आपको फर्स्ट टाइम मेजर किया 95 मिला, सेकंड टाइम मेजर किया 98 डिग्री मिला, थर्ड टाइम मेजर किया 92 डिग्री मिला, तो ऐसा तो नहीं हो रहा है। सो दैट्स व्हाई इट इज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस विथ विच द गिवन वैल्यू may be repeatedly measured। okay, it is specified in terms of a scale reading over a given period of time। okay, अगर आप पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में अगर आप यहाँ पर मेजर करते हो तो वहाँ आपको रिप्रोड्यूसिबिलिटी होना चाहिए। ओके, रिपीटेबिलिटी भी यहाँ पर वैसा ही है। ओके, यानी कैसा है कि ये दोनों टर्म्स आपको रिप्रोड्यूसिबिलिटी या रिपीटेबिलिटी यहाँ पर आपको क्लोज रहेगा। ओके, इट इज डिफाइंड एज द वेरिएशंस ऑफ स्केल रीडिंग एंड रैंडम इन नेचर ड्रिफ्ट। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज डिफाइंड एज द, ओके, यहाँ नेक्स्ट ड्रिफ्ट का डेफिनेशन आ गया है। सो दैट्स व्हाई इट इज डिफाइंड एज द वेरिएशंस ऑफ स्केल रीडिंग एंड रैंडम इन नेचर। ओके, तो रिपीटेबिलिटी आप यहाँ पर डिफाइन करोगे इतनी लाइन, यही लाइन है रिपीटेबिलिटी के लिए। सो दैट्स व्हाई इट इज डिफाइंड एज द वेरिएशन ऑफ स्केल रीडिंग एंड रैंडम इन नेचर। ओके, तो उसे आप यहाँ रिपीटेबिलिटी यानी बार बार आपको वो आउटपुट रिपीटेबल आना चाहिए। नेक्स्ट आता है यहाँ पर डेफिनेशन ड्रिफ्ट का। ओके, ड्रिफ्ट विल बी डिफाइन इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट थिंग्स। ओके, सो दैट्स व्हाई ड्रिफ्ट ये डेफिनेशन हम देख रहे हैं। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। पहला आता है जीरो ड्रिफ्ट। ओके, सेकंड आता है स्पैन ड्रिफ्ट और सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट, और थर्ड आता है जोनल ड्रिफ्ट। ऐसे 3 सेक्शन में उसे यहाँ पर डिफाइन किया गया है। अभी ड्रिफ्ट होता क्या है, चलिए हम यहाँ पर इस तरह ऑब्जर्व करते हैं कि भाई ड्रिफ्ट होता क्या है। ओके, तो जीरो ड्रिफ्ट यहाँ पर बताया है। ओके, ड्रिफ्ट ने क्या, इफ द होल कैलिब्रेशन ग्रेजुअली शिफ्ट ड्यू टू स्लिपेज, परमानेंट सेट और ड्यू टू द अनड्यू वार्मिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब सर्किट, जीरो ड्रिफ्ट सेट्स इन। यानी ड्रिफ्ट बोले तो कैसा कि हमारा जो पर्टिकुलर वेव अब एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो वो वेव जो है वो वहाँ एक पर्टिकुलरली एक ओरिजिन से स्टार्ट हुआ और एंड हो रहा है एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर। लेकिन ऐसा ना होते हुए, भले भी वो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, पहले ग्राफ में देखिए आपको स्पैन ड्रिफ्ट बताया है। स्पैन यानी कैसा कि वहां पर आपको नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स बताया है और स्पैन ड्रिफ्ट बताया है। यानी वो लिनियरली तो वेरी हो रहा है, लेकिन लिनियरली वेरी होते समय ओरिजिन से ही निकल रहा है। लेकिन वहाँ ओरिजिन से निकल रहा है, लेकिन कैसा है कि वहाँ थोड़ा एक स्पैन में शिफ्ट हो गया। ओके, ड्रिफ्ट आया है, ड्रिफ्ट यानी एरर। ओके, तो ड्रिफ्ट
एरर हो जाता है। ओके, ये एरर हमें यहाँ पर शिफ्ट करवा देता है, बिकॉज ऑफ यहाँ पर कैसा है कि कोई एनवायरमेंटल इफेक्ट हो सकता है, लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी या फिर एयर प्रेशर। ओके, इसके वजह से यहाँ पर इस तरह के ड्रिफ्ट वहाँ पर इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। तो दैट्स वाई यहाँ कहा गया है, ओके, इफ द होल कैलिब्रेशन ग्रेजुअली शिफ्ट ड्यू टू स्लिपेज और परमानेंट सेट और ड्यू टू अनड्यू वार्मिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब सर्किट। ओके, अगर ऐसा हो तो यहाँ पर इस तरह के ड्रिफ्ट आप ऑब्जर्व कर सकते हो। सेकंड, आपको यहाँ पर फिगर में शो किया है जीरो ड्रिफ्ट। ओके, तो जीरो ड्रिफ्ट भी यहाँ पर देखिए नॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स है, और यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स पूरा का पूरा शिफ्ट हो गया है। ओके, तो इस तरह आपको यहाँ पर ऑब्जर्व हो सकता है। ओके, देन सेकंड आता है स्पैन ड्रिफ्ट। ओके, तो स्पैन ड्रिफ्ट और सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट आपको इस तरह यहाँ पर डिफाइन किया है। इफ देर इज अ प्रोपोर्शनल चेंज इन द इंडिकेशन all along the upward scale, the drift is called span drift or sensitivity drift। ओके, तो स्पैन ड्रिफ्ट और सेंसिटिविटी ड्रिफ्ट हमने ऑलरेडी यहाँ पर ग्राफ में देखा। ओके, सो यहाँ मैंने ऑलरेडी कहा कि भाई वहाँ की चेंज हो रहा है इफ देर इज प्रोपोर्शनल चेंज इन द इंडिकेशन all along the upward scale, the drift is called span drift or sensitivity drift। और थर्ड आता है यहाँ पर जोनल ड्रिफ्ट। जोनल यानी इन केस ऑफ ड्रिफ्ट ऑकर ओनली पोर्शन ऑफ स्पैन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, इट इज कॉल्ड जोनल ड्रिफ्ट। यानी कैसा कि यहाँ अगर आप यहाँ इन केस ऑफ ड्रिफ्ट ऑकर्स ओनली अ पोर्शन ऑफ स्पैन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। ओके, थोड़ा एक स्पैन में वहां पर आपको वहां जोनल ड्रिफ्ट वहां पर शो आउट हो सकता है। ओके, लेकिन यहाँ पर मैंने ग्राफ में नहीं शो आउट किया है। ओके, लेकिन यहाँ पर इस तरह का जोनल ड्रिफ्ट ऑब्जर्व हो सकता है। ओके, देन नेक्स्ट आता है रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन की बात करोगे तो जनरली कैसा है कि यहाँ पर इफ द इनपुट इज स्लोली इंक्रीज फ्रॉम सम आर्बिटरी इनपुट वैल्यू, it will again be found that output does not change at all until a certain increment is exceeded. This increment is called resolution। ओके, तो जनरली रिजोल्यूशन बहुत सारी बार आता है, तो यहाँ रिजोल्यूशन आप यहाँ इसे इस तरह डिफाइन कर सकते हो। इफ द इनपुट इज स्लोली इंक्रीज फ्रॉम सम आर्बिटरी इनपुट वैल्यू, यानी आप कोई एक आधी वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन वहाँ वो एक्सपेक्टेड वैल्यू के रिलेटेड यहाँ पर अगर इनपुट यहाँ स्लोली स्लोली अगर वेरी कर रहा है, it will again be found that output does not change at all until a certain increment is exceeded। यानी अगर आप ऐसा कंसीडर कर रहे कि भाई यहाँ पर कि भाई इनपुट वहाँ वेरी हो रहा है, लेकिन यहाँ इनपुट वेरिएशन होने के बाद भी आउटपुट में आपको कुछ चेंज नहीं दिखाई दिया, तो ऐसे सिचुएशन में वहाँ पर आपको रिजोल्यूशन एरर वहाँ पर इंट्रोड्यूस हो सकता है। ओके, सो ऐसे सिचुएशन में आप उसे यहाँ रिजोल्यूशन एरर कह सकते। ओके, तो जनरली रिजोल्यूशन एरर आप इस तरह डिफाइन कर सकते हो। सिमिलरली नेक्स्ट वन आता है थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड यानी कैसा है कि इफ द इंस्ट्रूमेंट इन इनपुट इज इंक्रीज वेरी ग्रेजुअली फ्रॉम जीरो, देयर विल बी सम मिनिमम वैल्यू below which no output change can be detected। This minimum value defines the threshold of the instrument or sensor। Okay, तो threshold आप इस तरह define कर सकोगे। Okay, if the instrument input is increase, okay, if the instrument input is increase very gradually from zero, but there will be some minimum value below which no output change can be detected। Okay, यानी इनपुट में ग्रेजुअल चेंज हो गया, लेकिन आउटपुट में आपको वहां पर कुछ भी चेंज दिखाई नहीं दे रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि अरे यार आउटपुट क्यों नहीं आ रहा है, ऐसा क्या हो रहा है। ओके, सो दैट्स व्हाई वहां पे जो माइनर माइनर चेंज आ रहा है, ओके, माइनर जो चेंज आ रहा है, तो ऐसे जो माइनर चेंज है उसे हम यहाँ पर थ्रेशोल्ड कहते हैं। ओके, तो थ्रेशोल्ड इस तरह आप उसे डिफाइन कर सकोगे। देन नेक्स्ट आता है स्टेबिलिटी। Okay, it is the ability of the instrument to retain its performance throughout is specified operating
लाइफ। ओके, यानी कैसा है कि पर्टिकुलर जो डिवाइस है वो डिवाइस अगर कंटिन्यूली लॉन्ग टाइम अगर वर्क करे विदाउट एनी चेंज, ओके, विदाउट एनी इंटरप्ट, ओके, तो ऐसे सिचुएशन में हम उसे कहते हैं कि भाई it has good stability. Okay, so that's why it is the ability of the instrument to retain its performance throughout its specified operating life. Okay, देन नेक्स्ट आता है टॉलरेंस। ओके, तो टॉलरेंस आप यहाँ पर इस तरह ऑब्जर्व कर सकते हो, इट इज द मैक्सिमम अलाउेबल एरर इन द मेजरमेंट इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ सम वैल्यू विच इज कॉल्ड टॉलरेंस। ओके, तो टॉलरेंस वहां पर आ सकता है। ओके, हम बहुत सारी बार हम अगर रेजिस्टेंस कैपेसिटर या इंडक्टर अगर मेजर करते हैं तो ऐसे सिचुएशन में हम वहां पर 5%, 10% या 1% का टॉलरेंस वहां पर एरर रखते हैं। सो दैट्स वाई ऐसे एरर को वहां पर हम टॉलरेंस कहते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में रीडिंग्स में भी टॉलरेंस अपने को वहां पर ऑब्जर्व करना पड़ता है, या जनरली कोई सेंसर है तो सेंसर की रीडिंग्स वहां पर आती है, तो ऐसे सिचुएशन में वहां पर सेंसर्स की रीडिंग में भी या एक्चुएटर्स की रीडिंग में भी आपको वहां पर वो इस तरह के टॉलरेंसेस कंसीडर करने पड़ते हैं। सो दैट्स वाई इस तरह का टॉलरेंस आप यहाँ डिफाइन कर सकोगे, द मैक्सिमम अलाउेबल एरर इन द मेजरमेंट। ओके, अगर कुछ थोड़ा बहुत एरर आता है तो ठीक है, लेकिन कुछ मैक्सिमम अलाउेबल एरर होगा तो इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ सम वैल्यू, कुछ वैल्यू में उसे यहाँ पर इंडिकेट किया जाता है मैन्युफैक्चरर के द्वारा, विच इज कॉल्ड टॉलरेंस। ओके, देन नेक्स्ट लास्ट आता है रेंज और स्पैन। ओके, जनरली हम हमारे स्केल है, स्केल में एक रेंज रहती है या एक आधा स्पैन रहता है। द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी, द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी फॉर विच एन इंस्ट्रूमेंट इज डिजाइन टू मेजर इज कॉल्ड रेंज और स्पैन। अगर आपके पास एक स्केल है तो स्केल जनरली यहाँ पर आपको हेल्प करती है भाई 30 सेंटीमीटर के लिए या 1 फीट के लिए मेजरमेंट कैरी आउट करने के लिए। तो ऐसा पर्टिकुलर रेंज उसके उसमें अवेलेबल रहेगा। या आप अगर अगर एक आधा थर्मामीटर ले रहे हो तो थर्मामीटर की भी रेंज हो रहेगी कि वो पर्टिकुलर 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही मेजर कर पाएगा, बियॉन्ड दैट नॉट पॉसिबल। तो या फिर आप एक आधा पर्टिकुलर वेइंग स्केल ले रहे हो तो वो पर्टिकुलर वेइंग स्केल जनरली अगर आप शॉप में जाते हो तो वहाँ 10 kg का लिमिट रहता है, या यानी नियर अबाउट 10 ग्राम से लेकर आप 1 kg तक जा सकते हो। बिलो 10 ग्राम या ऐसे नहीं जा सकोगे। आपको फ्रैक्शनल के लिए अगर चाहिए, लोअर वेट के लिए चाहिए तो आपको वो वेइंग स्केल अलग लेना पड़ेगा। हाइयर वेट के लिए या आपको तो ऐसे पर्टिकुलर वेट के लिए आपको वहाँ पर अलग स्केल लेना पड़ेगा। तो ये रेंज है, ये स्पैन है। तो इट इज द मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू of quantity for which an instrument is designed to measure is called its range or span. Okay, तो इस तरह आप यहाँ पर स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर डिस्क्राइब कर सकोगे। तो ये सारे आते हैं यहाँ पर स्टैटिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स में। ओके, नाउ द सेकंड पॉइंट इज दैट अ डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स आप सेंसर्स या इंस्ट्रूमेंट का भी डिफाइन कर सकोगे। देखिए, सेंसर्स रहे, इंस्ट्रूमेंट रहे, एक्चुएटर्स रहे, सभी में यहाँ पर एक तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे, उसका डिक्लेरेशन डिफाइनेशन भी सेम ही रहेगा। सो दैट्स व्हाई ओके हियर dynamic characteristics means the set of criteria defined for the instrument which are changed rapidly with time is called dynamic characteristics। यानी बहुत सारी बार हम कहते हैं कि भाई ये बच्चा बहुत डायनेमिक है। डायनेमिक बोले तो कैसा है कि अगर मैं कुछ बात बता रहा हूँ वो इजीली अंडरस्टैंड कर पाए और उसका रिप्लाई भी मुझे इमीडिएट दे पाए। ओके, तो आपने यहाँ पर अभी तक मुझे प्रोजेक्ट के नाम ही नहीं दिए हैं, सिर्फ 3 लोगों ने ही नाम दिए, तो मुझे मेरे ख्याल से 3 लोग यहाँ पर जो है डायनेमिक है, बाकी के सारे स्टैटिक है। यानी यहाँ पर वो अभी वो इस कंडीशन में नहीं आए कि भाई उनको बताने के बाद 2 हफ्ते हो गए, 4 हफ्ते हो गए, तभी तक भी आपको उनका प्रोजेक्ट का नाम वो सेलेक्ट नहीं कर पा रहे। यानी यहाँ पर वो समझ में आ रहा है ना आपको यहाँ पर। तो उसी तरह यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट भी है। तो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर अगर आप कुछ इनपुट अप्लाई कर रहे हो और इमीडिएटली वो रिस्पॉन्ड कर रहा है तो ऐसे सिचुएशन में आप उसे कह सकते हो। ओके, यानी यहाँ पर कहा है चेंजेस रैपिडली विथ टाइम। ओके, चेंजेस रैपिडली विथ टाइम इज कॉल्ड डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स, याद रखो। हाँ, सो दैट्स वाई इस तरह के कैरेक्टरिस्टिक जनरली डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स के अंडर आते हैं। ओके, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि भाई कौन कौन से यहाँ पर डायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो पहला आता है स्पीड। ऑब्वियसली
speed of response, okay, then measuring lag, then fidelity एंड डायनेमिक एरर। ओके, तो ये 4 डिफरेंट टाइप्स हैं। तो ये अंडर आते हैं यहाँ पर डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, यहाँ पर द वेरियस स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा है, ओके, लेकिन यहाँ पर वेरियस डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए था। ओके, यहाँ गलत हो गया है। ओके, तो ये सारे डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स रहेंगे। तो हम एक एक करके यहाँ पर देखते हैं। पहला आया है स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स। अभी स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स क्या है, यानी फॉर एग्जांपल मैंने अगर यहाँ पर कुछ इनपुट लगाया तो इमीडिएटली उसने रिस्पॉन्ड अगर किया तो मैं यहाँ पर कहूँगा कि वो स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स इज वेरी फास्ट। मीन्स सी, it is defined as the rapidity which with which a measurement system responds to change in the measured quantity। ओके, यानी अगर आप यहाँ पर कोई अगर इनपुट अगर अप्लाई करते हो तो ऐसे सिचुएशन में इट शुड रिस्पॉन्स इट वेरी फ्रिक्वेंटली। सो ऐसे सिचुएशन में आप वहाँ पर कहोगे स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स इज वेरी फास्ट। ओके, गेटिंग एवरीवन। एंड सेकंड वन इज मेजरिंग लैग। ओके, तो अभी मेजरिंग यहाँ पर मेजरमेंट में कोई लैग यहाँ पर आ सकता है। लैग लैग यानी यहाँ पर थोड़ा यहाँ डिले आ सकता है या यहाँ पर एरर आ सकता है, तो मेजरमेंट लैग आ सकता है। तो ये देखते हैं क्या है। इट इज द रिटार्डेशन और डिले। ओके, इट इज द रिटार्डेशन और डिले। ओके, एक थोड़ा सा एरर हो सकता है इन द रिस्पॉन्स ऑफ मेजरमेंट सिस्टम टू चेंज इन द मेजर क्वांटिटी। ओके, यानी अगर आपने वहाँ कोई आउटपुट यहाँ पर ऑब्जर्व करना चाह रहे हो लेकिन जो इनपुट अप्लाई किया है उससे अगर वो मैच नहीं हो पा रहा है तो ऐसी सिचुएशन में वो आपको यहाँ पर थोड़ा अमाउंट ऑफ डिले वहाँ पर आ सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में उसे कहा जाता है रिटार्डेशन या डिले इन द रिस्पॉन्स। यानी सिस्टम इमीडिएटली फ्रिक्वेंट आउटपुट नहीं दे रहा है लेकिन वो थोड़े समय के बाद वो अगर आपको दे रहा है तो ऐसे सिचुएशन में आप उसे कहोगे कि भाई वो मेजरिंग एरर आ रहा है, मेजरिंग लैग आ रहा है, थोड़ा सा लैगिंग। यानी लैगिंग और लीडिंग दो बातें आपने टाइप सुनी होगी। ओके, सो दैट्स व्हाई लीडिंग बोले तो अहेड, ओके, और लैगिंग बोले तो थोड़ा वेट करके। तो ऐसा ये मेजरिंग लैग यहाँ पर आ सकता है। तो उसमें पहला है रिटार्डेशन टाइप। ओके, इन दिस केस the response of the measurement system begins immediately after the change in measured quantity has occurred। okay, तो ऐसे सिचुएशन में आप उसे रिटार्डेशन यहाँ पर इस तरह कह सकते हो या टाइम डिले लैग आप कह सकोगे। टाइम डिले यानी ओके, इट इज इन दिस केस द रिस्पॉन्स ऑफ द मेजरमेंट सिस्टम बिगिंस आफ्टर डेट टाइम आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ द इनपुट। ओके, यहाँ तक कि आपको ये टाइम डिले लैग है। याद रखिए, आगे फिडिलिटी आता है, थर्ड पॉइंट आता है। सो दैट्स व्हाई इन दिस केस द रिस्पॉन्स ऑफ द मेजरमेंट सिस्टम बिगिंस आफ्टर अ डेट टाइम। एक पर्टिकुलर डेट टाइम के आफ्टर अगर इनपुट अगर आपने अप्लाई किया होगा तो ऐसी सिचुएशन में आपको टाइम डिले लैग आ सकता है। ओके, थर्ड पॉइंट आता है यहाँ पर फिडेलिटी। फिडेलिटी मीन्स क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द डिग्री टू विच अ मेजरमेंट सिस्टम इंडिकेट चेंज इन द मेजरड क्वांटिटी विदाउट डायनेमिक एरर। ओके, तो फिडेलिटी मीन्स इट इज डिफाइंड एज अ डिग्री। ओके, एक डिग्री में उसे मेजर किया जाता है टू विच मेजरमेंट सिस्टम इंडिकेट चेंज इन द मेजर्ड क्वांटिटी विदाउट डायनेमिक एरर। ओके, तो ऐसे सिचुएशन में आप उसे कह सकते हो फिडेलिटी। ओके, और लास्ट आता है यहाँ पर डायनेमिक एरर। तो डायनेमिक एरर यानी कैसा है कि यहाँ इट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू of the quantity changing with the time and the value indicated by the measurement system. If no static error is assumed, it is called measurement error. Okay, तो ऐसे सिचुएशन में आप उसे डायनेमिक एरर कह सकोगे। मीन्स इट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी changing with time and the value indicated by the measurement system. If no static error is assumed, it is called measurement error. Okay, so I think you got the idea about the static and dynamic error. So this lecture is dedicated for static and dynamic characteristics of the sensors, actuator and the measurement system. Okay, so आपने यहाँ पर इस तरह इस पॉइंट को यहाँ लर्न किया। ओके, नाउ
अभी आपको यहाँ पर अटेंडेंस अगर लगाना होगा तो यू कैन राइट योर अटेंडेंस इन योर कमेंट बॉक्स. ओके, सो अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू सबमिट योर प्रोजेक्ट. ओके, तो आपने जो प्रोजेक्ट के टाइटल यहाँ पर अभी तक जिसने सबमिट नहीं किए होंगे, तो कमिंग सैटरडे तक यानी आपको नियर अबाउट 24 तक आपको यहाँ सबमिट करना है. ओके, सो थैंक यू वेरी मच.